Hi everyone, this is Janish Kothari here and welcome to our video of accounts. So students, in this particular video, I am recording sum number 4, which is given on page number 119, and we are dealing with the chapter ledger from our accounts textbook of State Board 11 Standard FIBC. Okay students, so I'm going to show you the question of what we're going to deal with. Yeah, this is the question and it's on page number, you can see we are on page number 119. Yes. So page 119, and this is the question. If you want to take a screenshot, you can take it. 1 second. Yeah, you can take the screenshot of the question if you want. And I'm going to move forward towards the solution now. So students, before starting the solution, of course, I would request you guys to subscribe to our channel if you haven't yet, and like our video and share with your friends. तो बच्चे लोग ये चैप्टर के अंदर इस वीडियो के अंदर टुडे वी हैव टू लर्न how to pass journalities from the given transaction, and look, it's written question number 4, journalize the following transaction, prepare cash account only. So in this particular sum, we don't have to prepare all the ledgers. We are going to only prepare one ledger, and that is cash account. Okay, sure. So now you can see on the screen just few changes. Let me make basic changes. Okay. Yes. So you can see on the screen, I have written the questions on the right hand side. Journalize the following transaction, prepare cash account only. So the first thing that we're going to do is concentrate on the journal entries. Okay, students. So before concentrating on the journal entries, you should know the golden rules of accounting. Those are really very, very important. Okay, so you can see all the 3 golden rules of accounting on the screen. Real account, debit what comes in, credit what goes out. For personal account, debit the receiver, credit the giver. And finally, for nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. So let's start, students. You can see on the screen, we are dealing with the year 2019, and the month is July month. And it says first, Hardik started business with cash and machinery. So cash 15,000 and machinery 20,000. So students, cash and machinery both are real account. तो दोनों ही बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, दोनों ही बिजनेस में आ रहे हैं स्टूडेंट्स. तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट भी डेबिट करेंगे. ओके, कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और कैश अकाउंट के साथ साथ और किसको डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट के साथ साथ कौन सा आ रहा है, मशीनरी अकाउंट. तो स्टूडेंट्स, मशीनरी अकाउंट को भी हम क्या करने वाले हैं, मशीनरी को भी डेबिट करेंगे. फाइन. दोनों डेबिट कितने से हो रहा है, 15,000 रुपीज एंड 20,000 रुपीज. नाउ स्टूडेंट्स, वो पैसा जो ओनर अपने घर से लेकर आता है बिजनेस शुरू करने के लिए, कॉल्ड एज कैपिटल. कैपिटल एक ओनर का अकाउंट है स्टूडेंट्स. एंड क्रेडिट द गिवर, ओनर इज द गिवर ऑफ द मनी, एंड दैट इज वाई स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे. नरेशन लिखेंगे, बिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एज कैश एंड मशीनरी. चलो, 2 चीज आई बिजनेस के अंदर स्टूडेंट्स, कैपिटल कैश भी आया और मशीनरी भी आई. ओके, सो बोथ अकाउंट आर डेबिटेड बिकॉज बोथ आर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन. और कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया स्टूडेंट्स, बिकॉज क्रेडिट द गिवर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेट नाउ, 4 तारीख है स्टूडेंट्स. 4 तारीख को लिखा है परचेज गुड्स. तो परचेज हमेशा डेबिट होता है, ये कर लो स्टूडेंट्स. परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है. परचेज डेबिट क्यों होता है, बिकॉज आप शॉपिंग करने जाते हो बच्चे लोग, तो आपका बहुत खर्चा होता है. मेरा तो भाई बहुत अलग लेवल पे खर्चा हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, परचेज हमेशा डेबिट होता है, इट्स एन एक्सपेंस. बट यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमने परचेज टोटल कितना किया था, टोटल हमने परचेज किया था 9,000 रुपीज का. बट हमको डिस्काउंट भी मिला है, अरे दैट्स ग्रेट. और स्टूडेंट्स, आप लोग को बता दूं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं आती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बट यहाँ पर हमें कैश डिस्काउंट दिया है. कैश डिस्काउंट की एंट्री आने वाली है, और बाकी का पैसा हमारे जेब से जाने वाला है. तो देखो, मैंने कैश को क्रेडिट क्यों किया स्टूडेंट्स, कैश को क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज बेसिकली ऑब्वियसली मेरे पास से कैश जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आपको हर एक अकाउंट पता होना चाहिए कौन है नॉमिनल. जैसे परचेज अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, डिस्काउंट रिसिव्ड हमारा स्टूडेंट्स कौन सा अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट, और डिस्काउंट रिसिव्ड नॉमिनल अकाउंट है. तो 9,000 का परचेज किया था, 900 रुपया 10% डिस्काउंट मिला, तो मेरे पॉकेट से कितना गया स्टूडेंट्स, 8,100 रुपीज चला गया. और ये सारी बातें आपको नरेशन में बतानी है. बिंग गुड्स परचेज्ड, ओके, बिंग गुड्स परचेज्ड एंड 10% डिस्काउंट अलाउड टू अस. हमको डिस्काउंट मिला स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली अगर हमको डिस्काउंट मिला तो दैट इज ऑब्वियस कि हमने बेसिकली ये हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है.
ठीक है। तो मैंने परचेज डेबिट किया, इट्स एन एक्सपेंस। कैश क्रेडिट क्यों हुआ? बिकॉज क्रेडिट वॉट गोज आउट, पैसा जा रहा है। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम फॉर मी, और क्रेडिट ऑल इनकम होता है। चलो 9th 1 नाउ लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू अमीर। तो स्टूडेंट्स जिस तरह से परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। ओके, सेल क्रेडिट क्या होता है? इट्स एन इनकम फॉर मी, और ऑब्वियसली पैसा आएगा स्टूडेंट्स गोल्ड गुड सोल्ड टू अमर ना। तो मैं अमर अकाउंट डेबिट लिखूंगा स्टूडेंट्स, अमर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया तो मैं अज्यूम करूंगा इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नाम दिया है ना हमें, गुड्स सोल्ड टू अमर, तो अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा स्टूडेंट्स? 3000 रुपीज, और यहाँ पे लिखेंगे 3000 रुपीज। चलो नरेशन लिखेंगे यहाँ पे। नरेशन आएगा ऑफ कोर्स बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमर। ओके स्टूडेंट्स, बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमर, ग्रेट। तो स्टूडेंट्स 9 तारीख के बाद नेक्स्ट कौन सी तारीख है? 12 तारीख है यहाँ पर, और 12 तारीख में लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700 एज फ्री सैंपल। ओके स्टूडेंट्स, तो हम जब कभी स्टूडेंट्स गुड्स को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे? ऑब्वियसली एडवर्टीजमेंट, खाली फुकट तो किसी को नहीं देंगे। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स बेसिकली हम एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं। कितने रुपए का एडवर्टीजमेंट किया हमने? ₹700 का एडवर्टीजमेंट किया है, और ये कौन सी तारीख है? 12 तारीख। ओके, ₹700 एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। ओके, यहाँ पे भी आएगा ₹700। नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट हम लोग, जो क्वेश्चन में दिया वही नरेशन लिखना है बेसिकली, और तो कुछ करना है नहीं। बिंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ओके, 12th class students, if you can see over here now what date that we are on date 14, what stationery। ओके, सो मैं यहाँ पे नंबर 14 लिखने वाला हूँ। स्टेशनरी, तो स्टूडेंट स्टेशनरी अगेन डेबिट होगा, स्टेशनरी डेबिट, इट्स एन एक्सपेंस फॉर अस। स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस, और हमारे पास ऑब्वियसली स्टेशनरी खरीदेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या जाएगा अपना से? कैश जाएगा, तो कैश अकाउंट। ओके, तो स्टेशनरी कितने की आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास? बॉट स्टेशनरी ₹550, 550, यहाँ पे लिखेंगे 550। और नरेशन में लिखेंगे हम लोग बिंग स्टेशनरी, स्टेशनरी परचेज्ड, बिंग स्टेशनरी परचेज। 14 के बाद स्टूडेंट्स कौन सा डेट है अब हमारे पास? लेट मी जस्ट चेक, 14 के बाद 18 है, नंबर 18। ओके, लिखा हुआ है रिसीव 950 फ्रॉम धनश्री, अ कस्टमर हुज अकाउंट वाज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। तो स्टूडेंट्स पहले हमने इसको बैड डेब्ट्स कंसीडर किया था, आज वो पैसा रिटर्न आ गया है। ओ हो, ओ नादान परिंदे घर आ जा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली वो पैसा वापस आ गया है। अब वो पैसा वापस आ गया तो स्टूडेंट्स हमारे लिए क्या हो गया? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। पहले मैंने सोचा था वो बैड डेब्ट्स हो जाएगा, बट वो बैड डेब्ट्स नहीं हुआ स्टूडेंट्स। ये तो बहुत भले मानुस निकल गए, हमें पैसा वापस दे दिया उन्होंने। तो बैड डेब्ट्स रिकवर हो गया, और बैड डेब्ट्स कितना रिकवर हुआ स्टूडेंट्स? ₹950 रिकवर हो गया है। ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। 950 और 950, ग्रेट। तो स्टूडेंट्स उन्होंने हमें नरेशन में हम वही लिखेंगे जो उन्होंने हमको बताया पूरा। चलो, तो हम नरेशन लिखेंगे यहाँ पे। ओके, बिंग, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम धनश्री, ओके, अ कस्टमर whose account was earlier, फिर क्या अर्लियर? रिटर्न एज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। ओके, रिटर्न ऑफ एज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स। चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब स्टूडेंट्स क्या हमें थोड़ी सी और लाइन की जरूरत है यहाँ पर, हम उसको इंसर्ट करके स्केल डाउन कर सकते हैं। ग्रेट। तो स्टूडेंट्स 18 डेट हमारी 18 भी खत्म हो चुकी है। अब आसान पढ़ने के लिए मैं स्क्रीन चेंज करके यहाँ पे 21, अब स्टूडेंट्स का लिखा है 21 में क्या हुआ है? अभिराम इनवॉइस अस गुड्स, उसने हमें गुड्स दिया, मतलब बेसिकली हमें स्टूडेंट्स क्या क्या परचेज किया है? अभिराम ने हमें गुड्स दिया है ₹3000 का, और डेट है 21 तारीख। चलो मैं यहाँ पे 21 तारीख लिख रहा हूँ। तो ऑब्वियसली परचेज क्या स्टूडेंट्स? परचेज, इनवॉइस का मतलब बिल होता है, तो उसने हमको बिल दिया, मतलब ऑब्वियसली वो परचेज हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, तो परचेज हमेशा डेबिट क्यों होता है? बिकॉज परचेज एन एक्सपेंस बेसिकली, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है।
कितने रुपए का था स्टूडेंट? 3000 रुपीज का गुड्स था। अभी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि उसने हमें पैसे दे दिया नहीं दिया, तो हम अभिराम लिखेंगे, अभिराम इज द गिवर, अभिराम। हम अज्यूम करेंगे इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अभिराम्स अकाउंट। ओके, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नरेशन में हमें वही लिखना है स्टूडेंट्स जो हमें क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया? अभिराम इनवॉइस अर्ज गुड्स, है ना? तो जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है वी हैव टू मेक श्योर हम आंसर में भी वही लिखे स्टूडेंट्स। बीइंग अभिराम इनवॉइस अस गुड्स, मतलब वही हो गया कि हमने गुड्स परचेस किया और हम अज्यूम करें ऑन क्रेडिट है स्टूडेंट्स। ओके, ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऐसा हमें अज्यूम करके चलना है। ओके, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 24 सेटल्ड अभिराम। अब 24 तारीख को उसका अकाउंट हमने क्या कर दिया स्टूडेंट्स? सेटल कर दिया था 24 तारीख को। ओके, 24 तारीख को बेसिकली हमें उसको अभी पे करना है। पहले हमने उसको क्रेडिट किया था तो अब वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डेबिट हो जाएगा, बिकॉज अब हम उसको पैसे दे रहे हैं। तो अभिराम को हम पैसे दे रहे हैं स्टूडेंट्स, अभिराम को हम पैसे दे रहे हैं स्टूडेंट्स, अभिराम अकाउंट डेबिट। और अभिराम को हमको टोटल कितने देते हैं? 3000 रुपीज देते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? सेटल। हमने क्या लिखा है? सेटल 5% कैश डिस्काउंट। यस, हमें डिस्काउंट मिला स्टूडेंट्स, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो टू कैश अकाउंट आएगा और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आएगा। हमें फिर से डिस्काउंट मिला है। कितना परसेंट दिया है? 5% दिया स्टूडेंट्स। 3000 का 10% 300 होता है, एक जीरो कम कर देने का। तो 3000 का 10% कम क्या? 300। 300 का आधा 150। 150 का डिस्काउंट मिला, मतलब स्टूडेंट्स 2850। मेरे पॉकेट से कितने पैसे गए? 2850 रुपीज चले गए। तो बिंग सेटल्ड अभिराम्स, क्या लिखा? बिंग सेटल्ड अभिराम्स अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव लिख लो। आप कुछ भी लिखो, थोड़ा बहुत नरेशन ऊपर नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्काउंट रिसीव। ओके ग्रेट। 24 के स्टूडेंट्स अब क्या है? 27 है। एक्सचेंज गुड्स वर्थ रुपीज 2500 अगेंस्ट फर्नीचर। हमें फर्नीचर चाहिए था। तारीख है 27 तारीख। चलो 27 तारीख है स्टूडेंट्स, हमने उसको एक्सचेंज किया। बेसिकली हमारे पास फर्नीचर आ रहा है। आप समझो, क्वेश्चन समझो अच्छे से। क्या आ रहा है हमारे पास? फर्नीचर आ रहा है स्टूडेंट्स, और एक्सचेंज क्या किया? गुड्स दिया। बेसिकली हमने उसको माल बेचा है स्टूडेंट्स, तो सेल्स अकाउंट आएगा। क्या वर्ड लिखेंगे? सेल्स अकाउंट। फर्नीचर आ रहा है बिकॉज फर्नीचर डेबिट होगा स्टूडेंट्स। एंड कितने अमाउंट का फर्नीचर है? 2500 का। और सेम अमाउंट का हमने उसको माल बेचा है, बेसिकली गुड्स बेचा है, तो इट्स एन इनकम फॉर अस। गुड्स क्यों बेचे स्टूडेंट्स? पैसा कमाने के लिए तो बेचेंगे। ओके, तो बिंग लिखेंगे यहाँ पे एक्सचेंज गुड्स। बस जो नरेशन है वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं तो अगेंस्ट फर्नीचर लिख रहा हूँ। बिंग एक्सचेंज गुड्स अगेंस्ट फर्नीचर, बस इतना काफी रहेगा, बाकी सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स फर्नीचर आया तो डेबिट किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड सेल क्रेडिट हो गया बिकॉज इट्स एन इनकम फॉर अस। ओके, गोइंग फॉर टू नाउ लास्ट वन 29 है स्टूडेंट्स। अब 29 में स्टूडेंट्स क्या हो रहा है यहाँ पर? लेट्स सी। हमने विड्रॉ कैश फ्रॉम एटीएम फॉर ऑफिस यूज। तो स्टूडेंट्स हमने एटीएम गए, हमने कैश विड्रॉ किया और ऑफिस यूज के लिए, तो ऑब्वियसली हम उस कैश को घर घर नहीं लेके आए, हम ऑफिस में लेकर आए, तो ऑफिस में कैश आ रहा है। तो स्टूडेंट्स कितना कैश लेकर आए थे हम ऑफिस से? 5000 रुपीज हमने विड्रॉ किया। एंड और फिर स्टूडेंट्स आगे क्या लिखा है? और भी आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है 3000 फॉर पर्सनल यूज, और 3000 का हमने पर्सनल यूज। तो स्टूडेंट्स जब भी पर्सनल यूज आएगा तो हम ड्रॉइंग्स वर्ड लिखेंगे, वो पैसा हम ऑफिस में नहीं घर लेके चले गए। तो हमने टोटल 5000 रुपीज विड्रॉ किया ऑफिस के लिए, और ड्रॉइंग्स घर के लिए लेके गए 3000 रुपीज। तो ओनर जो पैसे अपने घर लेके जाएगा विल ऑलवेज बी डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, ये सब पैसा स्टूडेंट्स कहाँ से कट हुआ? बैंक, बैंक इज द गिवर। एटीएम जाओगे तो पैसा तो कटेगा, पैसा कहाँ से कटेगा? आपके बैंक अकाउंट से कटेगा। इज दैट ओके? तो आपको नरेशन में लिखना है बिंग कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर पर्सनल यूज, दोनों के लिए हमने किया कैश विड्रॉन फॉर ऑफिस यूज एंड पर्सनल यूज। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपनी सारी जनरलिटीज कंप्लीट हो गई है। अब हमको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए आई विल नीड अ पेंसिल एंड स्केल। गिव मी जस्ट 1 मिनट। ओके सेशंस, आई हैव अ पेंसिल एंड बेसिकली आई हैव अ बुक आल्सो हियर। मैं अब क्या करने वाला हूँ, उस बुक के अंदर कैलकुलेट करने वाला हूँ। हमको टोटल करना है। ओके, टोटल करना होगा ऑफ कोर्स। तो ये 35 और 9 कितना हो जाता है? 44,000 तो हो गया। ठीक है, फिर ये 3700, 3700 ये दोनों, फिर 550 को मैं अलग से लिख रहा हूँ। अच्छा, 550 और 950 1500 हो जाएगा। 1500, 3000, 4500। ठीक है, ये 3000 है और ये ढाई, ये 5500 हो गया, 5500 रुपया। ओके, और ये 8000 हो गया, और एक 8000 रुपया। चलो इन सबको प्लस करेंगे। 0 0 17, 1 कैरी, 8, 8 और 4 12, 12 और 5
12, 20, 25, 2 कैरी, 65,700। स्टूडेंट्स मेरा आंसर है 65,700 और मैं यहाँ भी लिखूंगा 65,700। ओके, तो आप लोग देख लो आप लोग का टोटल क्या रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे टोटल करेंगे और रुपीज का साइन भी डालना था मुझे यहाँ पर। चलो रुपीज का साइन मेरे पास थोड़ा सा ऊपर है, मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा रुपीज के साइन को। ओके, यहाँ पे जनरल तो ऑब्वियसली पूरी कंप्लीट कर ली है। नाउ वी हैव टू कम ऑन द डिफिकल्ट पार्ट। व्हाट डू वी हैव टू डू, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बोला गया था वी हैव टू मेक कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट्स देखो मैंने यहाँ पे कैश अकाउंट का पूरा फॉर्मेट रेडी रखा है। ओके, कैश अकाउंट के फॉर्मेट के लिए आपके जनरल आपकी आंखों के सामने होने चाहिए। बहुत आसान है, आप पहले अच्छे से पूरा का पूरा फॉर्मेट बना लो, फिर यहाँ से शुरू करेंगे। जुलाई है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जुलाई लिख लेता हूँ। यहाँ भी जुलाई लिख दिया मैंने और यहाँ भी मैंने जुलाई लिख दिया है। ओके, स्टार्टिंग द फर्स्ट वन। अब सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट बनाना है स्टूडेंट्स, तो कैश अकाउंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। सबसे पहले देखो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पर। आप जनरल वाइज जानिए, कैश अकाउंट डेबिट 15,000 से हो रहा है, तो 1 तारीख है, पहले आप यहाँ पे 1 तारीख लिख लो। फिर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो सामने वाले का नाम लिखना है। सामने मतलब कैश डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट में क्या वर्ड लिखा है, कैपिटल। मैं यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज करूंगा, टू कैपिटल अकाउंट। और कितने से कैश अपना आया था, कैश कितना आया था, लेट मी जस्ट चेक। कैश आया था 15,000 रुपए। ओके, तो यहाँ पे मैं 15,000 रुपीज लिख रहा हूँ। ओके, डन। और उसके बाद 4 तारीख है स्टूडेंट्स, 4 तारीख को देखो कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, यस क्रेडिट हो रहा है। और सामने वाले का नाम लिखना है बाय परचेज अकाउंट, सामने वाले का नाम लिखना परचेज अकाउंट। लेट्स सी कैश कितने से क्रेडिट हुआ, मुझे अमाउंट लिखना पड़ेगा 8,100। यहाँ लिखूंगा मैं 8,100। दिस इज ओके। तो आपको जनरली में चेक करना है कि कैश डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। अब 9 तारीख में तो स्टूडेंट्स देखो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि 9 तारीख में तो कैश वर्ड ही नहीं है, तो कोई बात नहीं। अब 12 तारीख में भी कैश वर्ड ही नहीं है स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं। 14 में यस कैश वर्ड है स्टूडेंट्स, 14 तारीख को, और कैश क्रेडिट हो रहा है 14 में। कैश क्रेडिट हो रहा है स्टूडेंट्स, तो मैं कैश, और सामने क्या नाम था, बाई स्टेशनरी अकाउंट, बाई स्टेशनरी अकाउंट। सामने जो नाम होगा वही लिखना है हमें। और ये कौन सा तारीख है, 14 तारीख, 14 तारीख का अमाउंट है 550 रुपीज, 550 रुपीज। तो 14 भी हो गया। अब 14 के बाद स्टूडेंट्स हैं 18, 18 में देखो कैश डेबिट हो रहा है और सामने वाले का नाम टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। चलो तो 18 है, यहाँ लिखेंगे कैश डेबिट हो तो डेबिट साइड लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। और कितना, 950 रुपीज है, मुझे याद है यहाँ पे क्वेश्चन में 950 रुपीज है। तो 18 तारीख भी हो चुका है। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखो 21 में स्टूडेंट्स कहीं भी कैश अकाउंट नहीं दिख रहा है, यू कैन सी ओवर हियर, ये बाजू देखो यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं दिख रहा है, वेरी गुड। 24 तारीख में मुझे कैश दिख रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है स्टूडेंट्स, कैश क्रेडिट हो रहा है। चलो 24 तारीख में जाएंगे और कैश क्रेडिट हो रहा है, तो सामने क्या लिखना, बाय अभिराम्स अकाउंट, सामने वाले का नाम लिखना है बाय अभिराम्स अकाउंट, और अमाउंट था 2850। आपने अगर अभी जनरलिस्ट अच्छे से कॉपी की होगी तो आपके सामने एक जनरलिस्ट होगी, आप जनरलिस्ट को सामने रखिए एंड एट द सेम टाइम यू सॉल्व लेजर विद मी। ओके, हम पोस्टिंग कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम पोस्टिंग बोलेंगे। 24 तारीख के बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है 27 तारीख में भी कैश वर्ड नहीं है। 29 तारीख को यस कैश वर्ड है स्टूडेंट्स, और लेट मी जस्ट चेक कैश का अमाउंट कितना है, 5,000। 29 तारीख को कैश डेबिट हो रहा है। ओके, 29 तारीख को कैश डेबिट हो रहा है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे लिखेंगे 29 तारीख, और सामने टू बैंक का नाम था तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट था 5,000 रुपीज। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा लेजर कंप्लीट हो गया, अब इसको क्लोज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्लोजिंग का प्रोसेस स्टूडेंट्स काफी आसान है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच साइड इज हैवियर, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, आप वो देख लो। आपका डेबिट साइड ज्यादा हैवी है, क्रेडिट साइड ज्यादा, तो मुझे डेबिट हैवी लग रहा है। ये देखो 15 और 5 20, ये तो ओरली कर सकते हैं, 20,950। यहाँ पे 20,950 है स्टूडेंट्स, यहाँ भी इसको अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ भी आएगा 20,900, ये 20,950 है, यहाँ भी करेंगे 20,950। अब 20,950 में से स्टूडेंट्स बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो डेबिट में सब क्रेडिट, क्रेडिट साइड में टोटल कर रहा हूँ, मेरे पास पेंसिल है देखो, 810, 8100, 550 और 2850, तो 0 0 1 कैरी, 8 10 15 1 कैरी, तो 11,500 आ रहा है। तो 20,950 को 11,500 से माइनस करूंगा, 0 5 9 -5 कितना होता है, 4, और 10 में से 1 गया तो 9। स्टूडेंट्स 9,450 आ रहा है मेरा आंसर, 9,450। और यहाँ पे क्या तारीख है, कौन सा महीना है, जुलाई का महीना, 31 तारीख, बाय बैलेंस कैरी डाउन, लास्ट डे ऑफ द मंथ लिखना है, तो 31 तारीख जुलाई की आखिरी डेट है स्टूडेंट्स।
और जुलाई का नेक्स्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 अगस्त आएगा। अगस्त लिख दो यहाँ पे, 1 कर दो, 1 अगस्त टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जुलाई के महीने का जो क्लोजिंग होगा वो अगस्त के 1 तारीख का ओपनिंग होगा स्टूडेंट्स, 9450। और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सम हो गया कंप्लीट। ग्रेट, ये ओके स्टूडेंट्स। सो आप, आई होप आप लोग को पूरा सम समझा होगा। द फर्स्ट स्टेप, आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। ट्रांजैक्शंस दिए होंगे, ट्रांजैक्शन से यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के लिए आपको गोल्डन रूल्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, उसमें कोई शक ही नहीं है। एंड वंस you have passed all the journal entries, then you have to do the posting into the ledger। इस समय हमें सिर्फ एक ही लेजर बनाने को बोला था, कैश अकाउंट, तो हमने सिर्फ एक ही लेजर बनाया है। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये सम समझा होगा, एंड द वीडियो वाज क्वाइट हेल्पफुल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। And please subscribe to our channel if you haven't yet, and like our video, and make sure that you do some comment, you drop some comment and let me know exactly how did you find the video. Hasta la vista guys, have fun, tada, bye bye।